Hello students, today we are going to discuss another article that is harmful effects of plastic bags. This type of titles you must have seen many a time and this is very important topic. Plastic bags means polythenes. Okay, polythene bags, plastic bags, harmful effects of plastic bags. Just like I told you yesterday also, we have to write byline, the title and then the byline by Irfan Hussain. Whatever the name will be given in your question, you will write here. During the past decade means period of 10 years. During the past decade, shopping trend has increased tremendously. Shopping trend increase हुआ है tremendously, बहुत ज़्यादा. It's almost a fad among people to go for shopping and buy numerous things from the market. Almost a fad. Fad क्या होता है? एक फैशन होता है और एक फैड होता है. ओके, फैशन जो होता है वो थोड़े लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए चलता है और फैड कहते हैं जो शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए प्रचलन में आता है, जिसका ट्रेंड होता है थोड़े टाइम के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड अ फैड. फैड एंड फैशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. It's almost a fad among people to go for shopping and buy numerous things from the market. लोगों में ये एक प्रचलन बढ़ा है इस चीज़ का कि वो मार्केट जाएं और शॉपिंग करें बहुत सारी चीज़ों की. And we have seen that people don't carry their own bags to fetch those things home. और लोग, fetch means bring, to fetch means to bring. लोग अपना बैग नहीं ले जाते सामान लाने के लिए. They are rather dependent on poly bags which are easily available, and shopkeepers too happily pack the goods in them. और लोग अपना कैरी बैग नहीं लेके जाते और पॉली बैग्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं और शॉपकीपर्स भी हैप्पीली उनको पॉली बैग्स में सामान पैक करके पकड़ा देते हैं. These poly bags are no doubt easy to handle, tough, durable and waterproof, but they are very harmful in many ways. Benefits तो हैं इसके, easy to handle हैं, आराम से इनको ले जाया जा सकता है, tough हैं, फटते नहीं, durable हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं और waterproof हैं, but इनके बहुत सारे harmful effects भी हैं. Actually, the polybags are non-biodegradable. एक तो ये non-biodegradable हैं. They do not decompose naturally. Natural तरीके से ये decompose नहीं होते. अगर इनको फेंक दें तो ये decompose नहीं होते अपने आप. इनको decompose करने के लिए कोई chemical processes use करने पड़ते हैं. And when we discard them, discard means throw away. When we discard them, they remain buried in soil for 1,000 years without getting decomposed. अगर हम उन्हें फेंक भी देते हैं तो हजारों सालों तक वो बिना डिकम्पोज हुए पड़े रहते हैं, मिट्टी में गड़े हुए रहते हैं. As a result, these bags cause a lot of soil pollution. और इसका रिजल्ट क्या है कि ये जो बैग्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, मिट्टी का पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. See the next line. Besides, they choke our drains and consequently dirty water overflows and cause diseases among the people residing nearby. और ये हमारी ड्रेन्स को, नालों को भी चोक कर देती हैं, बंद कर देती हैं ड्रेनेज सिस्टम को. और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप डर्टी वाटर ओवरफ्लो होता है और उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं उन लोगों में जो कि नियर बाय एरियाज में रिजाइड करते हैं, रहते हैं. इवन इफ दे आर बर्न्ड, दे रिलीज हार्मफुल स्मोक विच कंटेन्स डेडली गैसेज दैट कैन cause respiratory diseases to those who happen to inhale them. और अगर इनको जला दिया जाए तो इनमें से हार्मफुल स्मोक रिलीज होता है जो कि जिसमें डेडली गैसेस, जानलेवा गैसेस भी होती हैं और जो कि अगर कोई इनको इनहेल कर ले उस स्मोक को, सांस के साथ अगर वो स्मोक अंदर चला जाए
तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस से संबंधित बीमारियां लग सकती हैं. Sometimes cattle chew them along with the waste food items, and these polybags get stuck in their intestine, resulting in the death of these poor animals. और कई बार वेस्ट फूड मटेरियल अगर इनमें डाला हुआ होता है, फेंक दिया जाता है, तो उसको काउज या स्ट्रे एनिमल्स खा लेते हैं और ये पॉलीथीन उनके इंटेस्टीन में चिपक जाता है और बेचारे उन जानवरों की डेथ हो जाती है. कंसिडरिंग ऑल दीज हार्मफुल इफेक्ट्स, गवर्नमेंट शुड बैन द यूज ऑफ पॉलीबैग्स और प्लास्टिक बैग्स एंड पीपल शुड रादर प्रेफर टू यूज क्लॉथ और जूट बैग्स. और ये सब कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को पॉली बैग्स जो हैं, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और लोगों को भी अपना क्लॉथ बैग या जूट बैग ही प्रेफर करना चाहिए. सो इन दिस वे यू विल राइट द आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सरसाइज रेगुलरली, स्टे हेल्दी. रेगुलरली एक्सरसाइज करें और हेल्दी रहें. बाय लाइन लिखेंगे आप बाय अनुभा. आप बाय लाइन यहाँ भी लिख सकते हो टाइटल के नीचे. अमंग द वेरियस ब्लेसिंग्स गिवन बाय गॉड, गुड हेल्थ इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, बट गुड हेल्थ परहैप्स मीन्स शायद ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है. मदर नेचर हैज गिवन अस अ वंडरफुल बॉडी which is a complex combination of organs, bones, skin, senses, and number of natural bodily systems keep us alive and working. और हमारी बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑर्गन्स, अनेक अंग हैं, बोन्स हैं, स्किन है, सेंसेस हैं हमारे, और अ नंबर ऑफ नेचुरल बॉडीली सिस्टम्स हैं जो कि हमें जो कीप अस अलाइव एंड वर्किंग, जिससे हम जिंदा रहते हैं और वर्किंग रहती है हमारी बॉडी. बट वी ह्यूमन बीइंग्स ऑफन टर्न केयरलेस टुवर्ड्स आवर ओन बॉडी. हम ह्यूमन बीइंग्स कई बार केयरलेस हो जाते हैं अपनी बॉडी के प्रति. इरेगुलरली मील्स, अगर इरेगुलर टाइम पे खाना खाया जाए. लग्जूरियस लाइफस्टाइल, सुख सुविधाओं वाला जीवन शैली. एवरीडे स्ट्रेस टुगेदर कॉज बैड इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. और साथ में रोज जो हम स्ट्रेस, टेंशन लेते हैं, इन सब का मिलजुल कर बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर. एज अ रिजल्ट सो मेनी पीपल फॉल प्रे टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस. तो बहुत सारे लोग अ नंबर ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों का, प्रे मीन्स शिकार, फॉल प्रे मीन्स शिकार बन जाते हैं. और कौन सी बीमारियां? लाइक हाइपरटेंशन, ओबेसिटी. हाइपरटेंशन होती है टेंशन की प्रॉब्लम. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम. हार्ट प्रॉब्लम्स एंड मैनी अदर सच एलमेंट्स. एलमेंट्स होती हैं तकलीफें, बीमारियां. इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, फास्ट पेस्ड मीन्स स्पीडेड लाइफ, आजकल की जो फास्ट तेज गति से चलने वाली लाइफ है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. हमें अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए. डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेज कैन हेल्प अस अ लॉट. और रेगुलर एक्सरसाइजेज हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं. कीपिंग इन कंसिडरेशन आवर वर्किंग आवर्स एटसेट्रा, वी शुड प्लान आवर रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. अपने डेली रूटीन को, जो भी वर्किंग आवर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, रूटीन बनाए हमारा, और इसको फॉलो भी करना चाहिए. while an aerobic exercise, anaerobic means not aerobic. एक तो aerobic exercises होती हैं, आपको पता है, aerobics means जिसमें हमारी बॉडी के मोड़ तोड़ करना और रस्सियों पे लटकना, पोल्स की हेल्प से कुछ करना, वो एरोबिक्स होती हैं. एनारोबिक्स मीन्स जो एनारोबिक्स दूसरी टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक वेट लिफ्टिंग एटसेट्रा, शुड बी डन 3 to 4 times a week.
We can do simple aerobic exercises like walking, swimming, cycling, and playing some favorite outdoor games on a regular everyday basis. हम एरोबिक एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं जिनमें हमारे हाथ पैर या बॉडी के ऑर्गन्स वर्कआउट करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, प्लेइंग या अपने आउटडोर गेम्स को प्ले करना. तो ये चीज़ें हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए. और अनएरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे कि वेट लिफ्टिंग वो 3-4 टाइम्स अ वीक करनी चाहिए. इफ़ वी प्लान अ वर्केबल एक्सरसाइज शेड्यूल ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड स्टिक टू इट, वी कैन कीप आवरसेल्व्स perfectly healthy both physically and even mentally. और अगर हम अपना एक वर्केबल प्लान करें, एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएं जिस पे हम टिके रह सकें और इस पे टिके भी रहें, तो हम अपने आप को परफेक्टली हेल्दी रख सकते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी. सो दीज आर योर 2 articles. You should try to write the other articles in your Bravia practice book. There are many articles and you are given some tips also, some hints also. Using those hints, you can try to write the articles. Thank you.